ਸੱਜਣੋ, ਅੱਜ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਗਏ, PGI ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਲਓ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਲਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ 340 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਖਾ ਲਈ। ਤੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 2 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ 50% ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਚਦਾ। ਦੂਸਰੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਨਵਾਂਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਿਓਡੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਪਰੇਅ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੋਰਨ ਮੈਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫਟਾਫਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਨਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਨੱਕ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਦੌੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦ, ਉਹ ਗੰਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਨੱਕ ਵਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, ठीक नहीं हो रहा, की करिए, चल साड़ी किस्मत है, तो मेरी किस्मत है ही यही कुछ सीगा। बुनियादी तौर के उत्ते सानू नज़ला, जुकाम, खांसी, दस्त ते बुखार ये उदों होणगे मन के चलो जो सारे शरीर के अंदर कूड़ा करकट जमा हो जाता है। अगर इस कूड़ा करकट की सफाई वाल असीं ध्यान देंगे तो ये नहीं होएगा। ये क्यों होंदा साडे अंदर जमा क्यों होंदा है? जमा इस करके होंदा क्योंकि साडा शरीर जिहड़ी चीज़ नूं नहीं पचा सकदा वो पूरी तरह साडे शरीर चों डिस्चार्ज नहीं होंदी। मिसाल के तौर पर अज एक सर्वे के मुताबिक 80% लोगों को पेट गैस का रोग है। पेट गैस का रोग किन्हां नूं है? जिहड़े ओवर ईटिंग करते हैं, बेवक्त खाते हैं, खाना गर्म कर करके। साडे SDM साहब सरदार सुखदेव सिंह मान वेलकम करते हैं इतने आउण ते इन्हां दा। विदम सिंह बेदी 75 तो 80 तक ना इतने SDM रहे ने जी। स्पैशल लुधियाना तो आए ने जी इस परिवार तो। हाँ जी, आप कितने चल रहे थे? 80% लोग जिहड़े ने पेट गैस के रोग तो पीड़ित ने। कोई चूरन लेंदा है, कोई दवाइयां खाता है, कोई रोटी के नाल कुछ खाता है। पर जे सानू ये पता लग जाए पेट गैस बढ़ती क्यों है, सानू दवाई की लोड़ ही नहीं रहनी, अपने आप ही नहीं रहनी लोड़। जदों असीं ओवर ईटिंग करते हैं, जदों असीं बिना भुख तो खाने हैं, जदों असीं हैवी चीज़ खाने हैं, रज के जिन्नी स्वाद लगती है, जदों असीं इत्थे तक भर लैंदे हैं गले नूं, फिर पेट गैस होनी होनी है। क्योंकि ना तो जिगर का साइज बड़ा हो जाना है उन्होंने हजम करने वाले का, तो ना अंतरियां की लंबाई वधनी है जिहदे नाल विच नूं होके उन्हें ठीक होना है। नतीजा की होंदा है? वो साडे शरीर का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। जिस बंदे नूं पेट गैस है, कुदरती गल है कि उसका शरीर भी भारा होना शुरू हो जाता है। 25 साल के मुंडे का, नौजवान का वजन 50 किलो होता है, तो 50 साल के जाके उसका वजन 70 किलो हो जाता है। सानू देखने को बड़ा चंगा लगता है, कहें भाई साहब बड़ी सेहत वधिया तुहाडी, लेकिन उन्होंने पूछो भी सेहत वधिया नहीं है, उन्होंने ये पूछो भी दवाइयां कितनियां खा रहे हो। उन्हें दवाइयां खा के जिहड़ी दवाई की तकलीफ है, जिहड़े रोग होंदा है, वो जाके डॉक्टर को दसदा जी मैनूं पेट गैस है। वो कहते तुसीं आओ सिर का कैप्सूल एक सवेरे लै लिया करो, ये तुहानूं गैस नहीं बनेगी। कितना चंगा होवे जे उन्होंने ये दस दिता जाए कि भी तू रोटी ज़्यादा खा रहे हैं, खाना इन्ना ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो खाण करके तेन पेट गैस हो रही है। थोड़े विचों बहुत सज्जन है जे बैठे ने इत्थे जिन्हों के मन च होना, क्योंकि अलग अलग रोग ने, सारे किसी को कोई है, किसी को कोई है। एक गल मैं जरूर तुहानूं दस देवां, जिहड़ी कुदरती इलाज प्रणाली है, ये हर जिन्ने रोग ने उन्होंने सारे का कारण एको ही है, नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार। अगर इन्हों असीं रोकांगे तो सारा जहरीला मादा जिहड़ा टॉक्सीकेशन जिहड़े साडे शरीर दे विच ही रहणगे, वो निकलणगे नहीं। जदों तक निकलणगे नहीं उन्ना चਿਰ सानू डॉक्टर कहेंगे जी ये तो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के इंजैक्शन लाउणगे, ला के उन्होंने भी अंदर ही रहन देने। उन्होंने भुख तो ज़्यादा मात्रा दे विच खाना, जे ज़्यादा खावांगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਸੀਰ नेचर साड़ी जी है वो एसिडिक हो जाएगी। एसिडिक वाला बंदा जोड़ा है वो चैन उन्होंने कदे भी नहीं होती, ना उन्होंने रात को नींद वधिया आती है, तो ना उन्होंने चैन होता किसी काम की, किसी थान से बैठा उन्होंने ये होता मैं इतों तक जावा, अरे नहीं उन्होंने पता मैं कितने जाना हूँ इतों, लेकिन उत्थे बैठ नहीं सकता बहुत ही देर। अज असी सारा खाना जिस तरह का भी खाने सवेर तो लैके शाम तक वो सारा इस तरह का ही है, एसिडिक है, एल्कलाइन नहीं है जोड़ा साढ़े शरीर के विचों गंदगी को बाहर कढ़े। तो कुदरत जो फिर आप नहीं करते, फिर कुदरत कहती है 3-4 महीने बाद भी सफाई मैं भी करती हाँ। कुदरत जो करती है सफाई असी वो काम च रुकावट बनते हैं। बच्चे दस्त लग जाते, छोटे बच्चों असी बच्चों जल्दी दस्त दे के रोक देंगे हाँ। अज मैंने दसिया गया एक बच्चे दस्त लगे सी, जो रोके नहीं जाने चाहिए, उन्होंने रोक दिते, बच्चे के अंदरों खून आने लग गया, फिर खून का इलाज शुरू हो गया।
दस तो एक पासे रह गए, फिर खून डालना शुरू हो गया। तो इस तरह सानू एक चक्कर दे विच असीं चल रहे हैं। सानू करना की चाहिए? जदों तक सानू पूरी तरह भुख ना लगे उन्ना चिर सानू भोजन नहीं करना चाहिए। साडा भोजन अज दे युग दे विच सवेर का, दोपहर का ते शाम का ना हो गए, ये होना चाहिए कि सानू भुख जब तक नहीं लगती उन्ना चिर असीं भोजन ना खाइए। शरीर साडा मंगदा है, भोजन मंगदा है, असीं उन्हें उस वेले भोजन दईए। उस वेले साडे शरीर दे विचों जिहड़ा लबाब पैदा होता है, निकलता है, खारिज होता है। आओ जी इंस्पैक्टर साहब निकलता है और खाना साडा हजम हो जाता है। जिस बंदे मेरी गल ध्यान नाल सुन लेना, जिस बंदे गैस, एसिडिटी, बलगम, दमा जिन्हों कहने आपां, और कब्ज, ये सारिया चीज़ां ने उन्होंने सारिया का कारण इको ही है कि वो भोजन इन्ना खाते हैं जिहड़ा उन्होंने पेट हजम नहीं कर सकता। ध्यान देना, मैं कोई दवाई नहीं देनी, ना मैं दसनी है दवाई खा लो। क्यों? क्योंकि बगैर भुख तो खाना। दोपहर का वक्त हो गया, साड़ियाँ भैन बैठिया ने, बीबियां बैठिया ने, उन्होंने कामयाबी इस गल च होंदी है, वो कहते जी खाना बन गया हम खा लो। वो कहते मैंने भुख नहीं है जी, कहते जिन्ना खाने जिन्नी भुख है उन्नी खा लो, काम नवेड़ो। कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं बनया कि जिहड़ा ये मुकर्रर कर सके खुराक के किहड़ी खान कौन खावे, सारे खान किहड़ी खुराक। एक पैमाना कुदरत ने साडे शरीर के अंदर एक मीटर लगा दिता, वो अलार्म बजता है। उस वेले जिहड़ा उस अलार्म को सुनता है उन्होंने कोई दवाई किसी तरह की जी मेरी तरह खाने नहीं पैंदी। मैंने 1 साल हो गया, मैं 1 साल एक भी कोई किसी रोग के वास्ते, हेल्थ वास्ते मैंने लोड़ ही नहीं पई। एक थां दे उत्ते हवन हो रहा है, हवन कुंड दे विच अग पाई हुई है। ਜਿਹੜੇ ਔਤੀਆਂ ਪਾਉਣ वाले ने उन्होंने साड़ी तरह जिस तरह असीं सवेरे घरों नाश्ता करके चले हैं, जिथे अगे गए उत्थे चाह पी लती, जिथे उत्थे अगे गए समोसे खा ले, फिर भी कोल्ड ड्रिंक पी लता। क्योंकि अजकल बंदा एक टाइम के अंदर, एक दिन के अंदर बहुत थावां ते चला जाता है। तो उन्होंने की हालत उस तरह होंदी है भी जिवें हवन कुंड दे विच अग तां घट रही है, असीं उत्ते उहदे समग्री सुट्टी जाने हैं। नतीजे के तौर पर की होंदा है, जिहड़ी अग होंदी है बुझ जाती है, हवन कुंड ठंडा हो जाता है, समग्री बेकार चली जाती है। कुदरत ने साडे अंदर, मैं दस रहा सी, कुदरत ने साडे अंदर एक मीटर लगा दिता। की मीटर? जिहदी आवाज़ असीं सुनते नहीं। हाँ, तुहाडे विचों कुछ खुशकिस्मत होणगे जिहड़े दवाई घट खांदे ने, उन्हां नूं रोटी खांदियां खांदियां एक डिकार जरूर आउंदा होएगा। ये डिकार सानू दस रहा है कि है प्राणी, मैं जो तू मैंने दिता सी मैं खा लिया, मेरे जोगा बहुत है मेरे शरीर वास्ते, इस तो वध होर ना खाई, मैं वो पचा नहीं सकता। किवें? साडा मेदा जिहड़ा है जदों हजम होंदी जाती है चीज़, पहला खुला होंदा इस तरह, जदों हजम होंदी जाती है चीज़ फिर वो इस तरह इकट्ठा होंदा जाता है। मिसाल के तौर पर भुख लगी हुई है पूरी तरह, जदों असीं खाना शुरू कर दिंदे आ उस वेले जिहड़ी उहदे अंदर हवा होंदी है, शुद्ध हवा, ते उहनूं जगह घटनी शुरू हो जाती है। जदों इंसान पूरी जिन्नी उन्हें चाहिए है उहदा शरीर हजम कर सकता उन्नी खा लैंदा है, तो उन्होंने फिर वो हवा उत्ते रहिंदी नहीं, वो डिकार आ जाता है। उन्होंने कहते तृप्ति डिकार, मैं तृप्त हो गया। लेकिन असीं शरीर नूं घूरदे हैं भी तैनूं की पता है, सब्जी बड़ी स्वाद आलू मटर की, होर खा लें, रज के खाने, जब तक इत्थे तक ना आ जाए उन्ना चिर असीं खाई जाने। फिर दोबारा एक डिकार होर आउंदा है, वो कहना भी अजे भी बहुत है, मैं भर गया हुण, मेदा कहना भी होर ना खाओ, लेकिन फिर भी वो खांदा है। उहदे विचों जिहड़ा इस तरह का खाना साडा हुंदा, उहदे विचों जिहड़ा खून बनदा है, उहदे विच कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वध जाती है, जिहदे नाल सानूं साडियां नाड़ियां दे विच जिहड़ा जम के नाड़ियां नूं तंग कर दिंदा है और सानूं ब्लड प्रैशर ਵਧਣਾ शुरू हो जाता है। आपां की करते हैं, आपां जाने डॉक्टर साहब को मेरा सिर भारी रहता जी,
सिर भारी हुंदा है, एसिडिक हो जाता साडा शरीर, सिर भारी हुंदा है, तेजाबी मादा हो जाता साडे खून दे विच। कह रहे हाँ जी हुण तां ठीक है बिल्कुल। वो कहना जी ये दसो भी ये किन्ने दिन खाणियां पैणियां? कहंदे मैंने सारी उम्र खाणियां पैणियां। काम अंदर चल रहा जी, असीं अपनी आदत नहीं बदली, अपना स्टाइल नहीं बदलिया खाण पीण का, काम अंदर चल रहा उस तरह ही। कुछ साल बीतने तो बाद फिर वो गोली 50 मिलीग्राम की हो जाती है। जे कोई बंदा 2-4 दिन भुल जाए गोली लेनी या मजबूरी च ना ले हो कि वो चैक करवाता आके कहना जी मेरा देखो कि ब्लड प्रेशर लगता मैं बढ़िया हुआ। मैं पता उन्होंने भी है लेकिन वो मजबूर है, उन्होंने कोई राह नहीं ना दस रहा, उनको पता नहीं लग रहा भी करा तो मैं की करा। अखीर दे विच जाके वो हार्ट अटैक का रूप धारण करता। जो 70% तक खून की नाड़ी बंद जब तक नहीं होती उन्होंने सानू कुछ नहीं पता लगता। 70% तक बंद रहती, पता रहता बंदा कहना मैं ठीक है, गोलियां चली जाती हैं उसी तरह खून होर पतला हो जाता है। सवेरे कितने जाना है करते कहते नहीं जी तुम आए करो हुणे रज के 2 परौंठे खा लो, तुम दोपहर को भुख ना लगा होवे, भुख सवेरे भी नहीं आती, असीं खा लेंगे। मैं तुहानूं ये सुजैसट करांगा जिन्हें किसी को ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर हैगा वो 2 टाइम का भोजन करके 1 टाइम अगर उन्होंने नहीं भुखे रहना, भुख लगती है उन्होंने तो वो कच्चा फ्रूट कच्ची सब्जी ये चीज़ वो लै सकते हैं। हफ्ते के अंदर अंदर ब्लड प्रेशर जितना मर्जी हो लैवल से आ जाता, तो उन्हें चैक कराने की लड़ नहीं पैगी, तो अपने आप पता लगता। साढ़े बजुर्ग ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮੱਸਿਆ ਦਾ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਦਸਵੀਂ ਦਾ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ, ਰਾਮਨੌਮੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ व्रत रखते होंगे थे। कहने क्योंकि सवेरे रज के इन्नी रोटी खा लेनी है तो दिन च अपने अपनी भुख लगनी है, लेकिन वो सारा दिन शरीर का वर्त नहीं रहना। हो वर्त वो है कि तुम खाओ जरूर, लेकिन फल खाओ, फल आहार, फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ, अन्न ना खाओ बिल्कुल, ताकि थोड़े शरीर नूं तुहाडे शरीर दे अंदरों गंदगी कड्ढण वास्ते मौका मिल जाए। जिस तरह एक औरत बाजार दे विच जा रही है, उहदे बच्चा गोद चुक्या होया है ते उहदे हत्थ दे विच पर्स है, ये लुटेरे हैं जिहड़े उन्हां नूं पता है कि पर्स दे विच गहणे है, वो डाकुआं दा लुटेरिਆਂ दा मुकाबला उन्नी आसानी नाल नहीं कर सकदी जिन्नी बच्चे तो बगैर या एक हाथ खाली वाली औरत कर सकती है। साडा शरीर जां ते साडे शरीर दे अंदरों जिहड़ा टॉक्सीकेशन जिहड़ी है उहनूं जां तां उहनूं कढेगा जां फिर जो असीं खाने उहनूं हजम करेगा। अन्न जिहड़ा है सब तो वध जोर लगदा है, अन्न खाण वाला बंदा हमेशा बुढ़ा हुंदा है, बहुत जल्दी बुढ़ा हुंदा है। थोड़ा खा के जिस दिन तुसीं थोड़ा खाओगे अन्न तो खुद पता लगेगा कि आज असीं बहुत चंगा काम किया। बनी हुई असीं जिहड़ी बचदी है फ्रिज दे विच रख दिंदे हां, उहनूं असीं दोबारा गर्म करके खाने हां। सज्जणों, एक अटल सच्चाई है कौड़ी, जिस घर दे विच बासी सब्जी खांदे ने, गर्म करके खांदे ने, 1 वारी नहीं 2 वारी नहीं 3 वारी खांदे ने, उस घर का परिवार जिहड़ा कदे भी दवाई तो लैण तो बच नहीं सकता, कदे भी तंदुरुस्त नहीं रह सकेगा, हमेशा रोगी रहेगा। दाल सब्जी उन्नी बनाओ जिन्नी तुसीं वरत सको, जिन्नी बच गई उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दो, बेहतर रहेगा, नहीं तो बाकी दवाइयां से पैसे लगणगे तुहाडे। तो मैं गल कर रहा सी शरीर नूं ठीक रखने वास्ते उधर का नियम तो यह है कि हफ्ते एक व्रत जरूर रखना चाहिए किसी दिन का भी। उस व्रत ये नहीं प्रधान जी इधर व्रत ये नहीं चाहिए कि तुसी
ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀ ਦਾ ਪੀਸ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਠਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਦਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ ਤੇ ਪੇਟ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਵਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਰੀਅਲ 100% ਪਿਓਰ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਚਿਕਨਾਈ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ, ਮਿੱਠਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਨਾਰੀਅਲ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਨਾਰੀਅਲ ਡਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।